Good morning. Today we are going to study rational numbers for class 8. Rational numbers for class 8. First definition. The number which can be written in the form of a by b, where a and b are integer and b should not equal to 0. b should not equal to 0. Then number is called a rational number. इट मीन्स किसी भी हालत में जो फ्रैक्शन तो आप जानते हो पहले से, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता था, एक डिनोमिनेटर। यहाँ क्या है कि हम लोग फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई भी रैशनल नंबर ले सकते, बट डिनोमिनेटर जो बी है वो 0 नहीं है। अदर इज पॉजिटिव। अगर रैशनल नंबर है तो दो तरह का, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है? If the numerator and denominator of a rational number, if numerator and denominator of a rational number both positive or negative, then it is a positive rational. यानी कि किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, लाइक -5 by -9 या -7 by -23, दोनों ही निगेटिव है। 25 by 31 एंड 1 by 2, ये दोनों का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पॉजिटिव। तो इन चारों को हम लोग कहेंगे कि ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ऐसे भी हम लोग पढ़े थे कभी फॉर्मूला डिवीजन ऑफ इंटीजर, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इट इज पॉजिटिव। यहाँ वही चीज है, -5 by -9 माइनस बाई माइनस इट इज +5 by 9, -7 by -23 -7 by minus it is minus by minus it is plus। ये पॉजिटिव के लिए तो प्लस बाई प्लस इट इज प्लस, फॉर्मूला तो पता है। सो लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर एक रैशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस केस में हम उसे पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे। नेगेटिव रैशनल नंबर, if the numerator and denominator of a rational number are opposite in sign, it means numerator is positive, denominator negative, उल्टा होगा, या numerator negative तो denominator positive, इस केस में से नेगेटिव रैशनल नंबर। फॉर्मूला पता है, ये फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, माइनस बाई प्लस इट इज माइनस और प्लस बाई माइनस इट इज माइनस। तो -5 by 9 it is -5 by 9, 7 by -23 it is -7 by 23। सब नेगेटिव है इसमें, एक नेगेटिव न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर या पॉजिटिव न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर अगर होगा तो हमारा रैशनल नंबर एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। Now come to the properties of rational numbers. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, सबसे तो जरूरी यही है। फ्रैक्शन याद है, हाउ टू कन्वर्ट और राइट an equivalent fraction or a number of equivalent fraction. We had multiplied a fraction numerator and denominator by the same number, it means it is multiple, or by same number division should be. See here what I am saying, a by b is a rational number, then
a by b, numerator and denominator, both when multiplied by the same number. It means a into m equal to b into m, or it is divided by the same number. It means a divided by m, b divided by m, where m is a non-zero integer. m non-zero integer, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीरो के अलावा और भी इंटीजर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जिससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे आप डिवाइड कीजिए, वहां कोई अंतर नहीं है. एग्जाम्पल 70 by 110 when multiplied by 2 or when divided by 10. Result will be 70 by 110 equal to 140 by 220 equal to 7 by 11. It means these all numbers are equivalent rational. If positive, so positive it will be, negative, so negative. Another property, that is the standard form. A rational number a by b is said to be in the standard form if a and b, means numerator and denominator, have no common factor other than 1. जैसे फ्रैक्शन हम लोग बनाते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको रिड्यूस कर लेते थे, उसी तरह से यहाँ भी रिड्यूस करना है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. वन क्या, वन तो हमेशा कॉमन होगा. एंड b इज अ पॉजिटिव इंटीजर, b हमेशा पॉजिटिव होगा. कभी भी आप डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म. लाइक हियर 14 by -21, it is a negative rational number. So when we want to change it in a standard form or a standard form of it, we have to reduce it. Suppose we are divide by 7. When we divide by 7, it will be coming denominator negative, because minus and 7 plus, then it is negative. So this is why we had divided here by negative 7. It means 14 divided by -7 equal to -21 divided by -7. इसे रिड्यूस कर लिया, कटा लिया, सिंपल कटा लेंगे इसको. 7 2 is 14, so it is a -2, plus minus minus, and minus divided by minus, it is plus 7 3. So -3 by 2 is the standard form of 14 by minus. जिन्हें फ्रैक्शन आता है उनके लिए बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, टॉपिक बहुत आसान है. बस यही एक अंतर आ रहा है यहाँ कि फ्रैक्शन में हम लोग जब पढ़े थे 5-6 में, 4 क्लास में, तो उस समय हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव ही होते. जब इंटीजर हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ लिया, 7 में पढ़ लिया, अब आके हमारे पास ये पता चल रहा है कि फ्रैक्शन में ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रैशनल नंबर हो रहा है, यानी कि नेगेटिव हो रहा है इंटीजर के साथ. नाउ कंपैरिजन, हाउ टू कंपेयर, कौन रैशनल नंबर बड़ा है, कौन रैशनल नंबर छोटा है. A positive rational number is always greater than 0. Positive rational number is always greater than 0, and a negative rational number always less than 0. See, 7 by 12, positive rational number greater than 0. 8 by -15, negative rational number less than 0. A positive rational number is always greater than a negative rational. यानी कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो हमेशा ही बड़ा होगा, बिल्कुल इंटीजर की तरह. इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़े होते थे. तो हियर 7 by -21, पॉजिटिव रैशनल नंबर ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर 12 by -21.
-1/2 negative rational number, less than 1/2 positive rational number. Which is greater, 5/-13 और -35/9? रिमेंबर, जब भी हमें ग्रेटर स्मॉलर यानी कंपेयर करना होगा, तो वी मस्ट कंपेयर अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपेयर नहीं करें, तो चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। -5/13, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -7 एंड -7 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो -7/5 into -7, it is -35, and -13 into -7, it is 91. And here also it is given -35/91. So here it is coming, both are equal. Now, if they are not equal, then we know how which of them are greater or not. But for the comparing, we must use standard form of a. Now, how to represent a rational number on a number line? फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने तो पहले से आता है, क्लास 6-7 में हम लोगों ने सीख लिया है। अब वही काम रैशनल नंबर में करना है। ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में तो फ्रैक्शन की तरह ही काम करे। वंस अगेन रिमेंबर, रैशनल नंबर कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होता है। एक बात समझ में, रैशनल नंबर कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है। आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अलग की बात है। फ्रैक्शन को लिखेंगे बट रैशनल नंबर नहीं लिखने वाले। So we must go to change it in a improper fraction, means improper rational number. यानी कि 1/2/3 को रैशनल नंबर, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बट मैं इसे रैशनल नंबर नहीं मानूंगा जब तक ये p/q के रूप में या a/b के रूप में नहीं लिखा जाए। a/b, it is a form of a rational number. Now it is 5/3. फ्रैक्शन कैसे हम लोग करते थे नंबर लाइन पर, याद करो सब, कैसे? Denominator 3. So when we divide a number line after 0, the first part known as 1/3. जो डिनोमिनेटर होगा वही हमारा फर्स्ट पार्ट 1 डिनोमिनेटर बनेगा। Here 3 is the denominator, so first part is 1/3. See how it is. See, it is a number line 0, first part 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 5/3 is our number. A point give, A is the point which represents 5/3. That means 1 whole 2/. It means किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रिमेंबर डिनोमिनेटर हमारा क्या है? Suppose denominator is 7. First part is 1/7. Then 2/7, 3/7, 4/7, 5/7. जहां आपका नंबर जा रहा है वहां तक जाना पड़ेगा। एंड जब भी रैशनल नंबर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं नंबर लाइन पर, तो लेफ्ट राइट यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मेंशन करो। ठीक है, इक्वल आप मेंशन नहीं कर सकते। 6/3 तक नेगेटिव में जाने का जरूरत नहीं है, तो एक दो तो कम से कम रिप्रेजेंट कर ही सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अभी कैसे रैशनल नंबर बनाते हैं। प्रैक्टिस करना है, you have to practice it more, and then after